So welcome to the last part of discussion of periodic table. So in this video we will draw the periodic table by our own hands. So बेटा मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपनी नोटबुक में एक ऐसा टेबल ड्रॉ करिए जिसमें आप 7 रोज बनाएं जैसे कि पीरियोडिक टेबल में होती हैं 6 7 क्योंकि ये हमारे पीरियड्स हैं. आफ्टर दैट आप ग्रुप्स ड्रॉ करें 18 ग्रुप्स. ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. आप एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करिए. बेटा हम सभी को पता है फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं वो कौन से ब्लॉक के हैं. ये है हमारे एस ब्लॉक के. एंड एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला NS1 to 2. ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 हमारे डी ब्लॉक के. एंड इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी N-1 D1 to 10. आफ्टर दैट NS0 to 2. ओके. एंड देन हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ई ब्लॉक. एंड कॉमन ईसी क्या है इसकी NS2 and NP 1 to 6, isn't it? Rather NS I must write it as uh, NS2 NP 1 to 6. Okay, all right. Okay, uh, now coming to the individual groups. Okay, so let me use quite darker pen. Okay, so now let's see group number 1. So group number 1 is Helena की रब से फरियाद. So hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. After that, group number 2, beta मांगे कार सुंदर बाप राजी. So beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. After that, group number D starts. So group number D को हम पीरियड वाइज स्टडी करते हैं. So पीरियड नंबर 4 में कौन सा था? सोनी, टीवी, क्रेजी, मैडम, फिंके, कोनी, क्यूरियस, जनता. All right. So scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc. Okay. So now coming to group number block D and fifth period. What was it? Yes, zero, nobody, most teachers, reject, Rohan's, paper, again, to confirm. Okay, so all right. So yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, and then our cadmium. Okay. Now after that it was Le हफ्ता वासिंग रे ओस आयरन पर गोल्ड है. Isn't it? So lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, and after that are mercury. Okay. So then the last row was actually R.D. Sharma book has mathematics, difficult reasoning competencies. Okay, so actinium,
रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हेस्नियम, मेटिनीरियम, डर्मस्टेडियम, रोन्टिजीनियम एंड कॉपरनिशियम। अब बेटा ये जो मेटल्स हैं डी ब्लॉक के, आपको इनके नाम अगर नहीं भी आएंगे तब भी चलेगा, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस ऑल दीज डी ब्लॉक मेटल्स। ठीक है बेटा, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, so after that, now coming to the our last p block. So let me use some different pen, although I should have used here different pen so that you can. Okay, so fine. So now for p block, let me use red pen. Okay, so p block. Now group number 13, very easy, your favorite: bangan, aloo, gazer in thella. Okay, all right. So boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. After that, group number 14. Group number 14, carbon family, which is chemistry, Sarji, Sanki, Prabhu. So carbon, silicon, germanium, and tin, and after that our lead. Okay, now group number 15, it is Nana, particle, Aishwarya, sub bigde. So it was about nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and after that are bismuth. Now coming to next, os se tepo. Okay, so oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. After that our fluorine, chlorine, bromine, iodine, and एस्टेटीन. ठीक है, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी के सभी क्या है, आस्तीन के सांप हैं. सो एस्टेटीन. ओके, नाउ लास्ट एट्री, एनी. सो व्हाट वाज इट? हीना का एक्सरे ऑर्गेनाइजेशन. सो हीलियम, नियॉन, argon, krypton, xenon and radon. So बेटा by this way हमारा जो periodic table पूरे का पूरा अब complete होता है. And now let us discuss some of the trends, some of the important trends rather I must say, that rather facts. So D block को हम कौन सा कहते हैं? So D block is our transition elements ना, ट्रांजिशनल. एंड एस एंड पी कौन सा था हमारा? रिप्रेजेंटेटिव. अच्छा बेटा, अब हमें अगर एटम्स के बारे में पता करना हो कि कौन से एटम का कौन सा एटॉमिक नंबर है, तो ये सारे के सारे जो एटम्स हैं ये एटॉमिक नंबर से अरेंज होते हैं पीरियोडिक टेबल में. जैसे कि ये हमारा 1 है, ये नंबर 2 है, सॉरी ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है. सो जैसे हम पढ़ते हैं ना, हाय, हेलो, लिसन, बीबीसी न्यूज ऑफ फ्रांस, निगा, नागा. सो उसी तरह से ये ऐसे चलता है. सो नंबर 1, नंबर 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10, number 11, number 12, atomic number 13, atomic number 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, सो बेटा लेकिन चेंज आता है जाके हमारे यहाँ पर लेंथिनम पे. ठीक है बेटा, क्योंकि जो बेरियम है वो हमारा 55 है, बट जो सॉरी बेरियम जो है वो हमारा 55 है. सॉरी, नॉट स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम तो हमारा 38 पे आता है. ओके, सो 55 है, लेकिन जो हमारा लेंथिनम है वो हम 57 से है. ठीक है, सो ये 57 से है एंड ये हमारा 72 है. सो देयर इज डिफरेंस. आपको ये पता हो अच्छा है, नहीं पता हो तब भी इसकी कोई बात नहीं, आपने बस ये पीरियोडिक टेबल याद रखना है. ठीक है,
मैं कुछ आपको ट्रेंड्स बताने चाहता हूँ पीरियोडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स कैसे होते हैं। सो लेट्स जस्ट सी दैट सम ऑफ द ट्रेंड्स, क्योंकि कभी कभार ये आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट मी जस्ट क्लियर इट। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल की इस साइड पे जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है। सो तभी हम कहते हैं ना कि जो फ्लोरीन है या फिर जो क्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। ओके। सो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के इधर आते हैं हमारा मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। जितने मेटल्स हैं वो सारे के सारे राइट हैंड साइड पे हैं। ठीक है। सो ये ज्यादातर इधर वाले सारे के सारे मेटल्स हैं, ये वाले नॉन मेटल्स हमें देखा था, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, है ना। सो ओके। आफ्टर दैट जैसे जैसे हम इधर को जाएंगे वैसे वैसे हमारे नॉन मेटल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। सो नॉन मेटल्स मेटेलिक करैक्टर्स इंक्रीज। ओके। जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं पीरियोडिक टेबल के हमारा एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। सो लेट मी यूज सम डिफरेंट पेन। ओके। सो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। एंड जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल से इधर को आएंगे तब भी हमारा एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके। एंड जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर को जाएंगे वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ओके। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स विच यू मस्ट नो। एंड बेटे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ कोइनेज एलिमेंट्स कौन से हैं। सो लेट मी जस्ट राइट हेयर कोइनेज एलिमेंट्स। सो ये जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको हम बोलते हैं कोइनेज एलिमेंट्स। ओके। आफ्टर दैट मोस्ट abundant element in। सो तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट abundant element in यूनिवर्स, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, एंड अर्थ की क्रस्ट में कौन सा सबसे ज्यादा है। सो पूरे ब्रह्मांड में तो फैला हुआ है हमारा हाइड्रोजन, एंड अर्थ की क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा मिलता है वो है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। आफ्टर दैट there is one more question. The question is most abundant metal, not non-metal, not element, metal in earth crust. So वो है हमारा एल्यूमिनियम। ओके। सो एल्यूमिनियम। एंड एक और क्वेश्चन है मोस्ट abundant ट्रांजिशनल मेथड डी ब्लॉक का मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो वो है हमारा आयरन। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। एंड सबसे ज्यादा बड़ा पीरियड होता है हमारा सिक्स्थ पीरियड, जो लार्जेस्ट है, क्योंकि जो हम नीचे एफ ब्लॉक लिखते हैं ऑल्दो हम पढ़ते नहीं है एफ ब्लॉक, सो वो सारे का सारा पी ब्लॉक जे सिक्स पीरियड में आता है हमारा एफ ब्लॉक। ओके। सो बेटा थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर पीरियोडिक